everyone. Good morning, student. How are you all? I hope you all well. So, today we are going to start lecture of chapter 4, right? We had done 2 to 3 lectures of chapter 4. So, first come to the chapter number 4. Yes, here. Page number 23. Chapter number 4, National Movements in India, and lecture number 2. We had done the first lecture of this chapter, and in that lecture we have learned about the introduction, then Great National Uprising of 1857, then boycott and indigenous movements. उसमें हमने 2-3 पैराग्राफ किया था, right? Now come to the next paragraph. We had done in this topic first 4 paragraph, and now we are start from the India benefited, that is the last paragraph of this topic. Okay. But before that we just revise the first 4 paragraph because हमारी लिंक जो है वो बनी रहे. Yes. So what is the boycott and indigenous movement? So in this 4 paragraph we had learned about the boycott of the foreign goods, कि जो भी foreign goods, जो foreign things है उनको हमें त्याग करना है, means boycott of foreign goods, and adopt the national education, adopt the indigenous product, that is the Swadeshi. The meaning of indigenous product means Swadeshi products, Swadeshi things. So उनको हमें अडॉप्ट करना है, नेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट करना है, और फॉरेन गुड्स जो है उनको त्याग करना है, राइट. देन on National Morning Day 16th October 1905. Q, because at that time on 16th October 1905 Bengal was divided, so all the Bengal observed the day as a national mourning day. And the same day announcement about the boycotting of all the foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made. And the boycott and indigenous movement along with the Bang Bang movement in 1905 was one of the important events of the Indian national movements. Because of the divide and rule policy as a result of British Machiavellian policy, boycott and indigenous movement got an impetus. So now come to the 5th paragraph. India benefited a lot due to this Swadeshi movement, while the English industry was badly affected due to the boycott of the foreign goods. See, इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ था, a lot of benefited on because of this Swadeshi movement, while the English industries was badly affected because हम जो भी फॉरेन गुड्स थे वो यूज नहीं करते थे, राइट. और हमने हमारी स्वदेशी जो थिंग्स थी वो अडॉप्ट करनी स्टार्ट करी थी. सो उनकी वजह से जो इंग्लिश इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उनका सेलिंग नहीं हो रहा था. सो डायरेक्टली उनके टर्नओवर पे अफेक्ट होता है और उनका जो प्रॉफिट वगैरह था वो डिक्रीज हो गया था. सो when we started the adopt the Swadeshi movement and boycott the foreign goods, then English industry was badly affected due to that movement. So the cloth coming from the Manchester stopped. Sugar, shoe, cigarette, tobacco, etc. imported from the England also reduced, and the sale of cloth made in India increased. See, हम clothes पहले कहाँ से लाते थे? मैनचेस्टर से. Then sugar, shoe, सिगारेट वो सब हम इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से, तो वो सब भी रियूज़ हो गया. और क्लोथ्स तो
टॉप ही हो गया। और इंडिया का जो बनाया क्लोथ्स वगैरह था वो हम और सेल कर रहे थे, उनको इंक्रीज कर रहे थे उनका टर्नओवर। So factories of the making indigenous goods was were started. And the effect of the movement was felt in the other provinces of the India, like the Punjab, UP, MP, Mumbai, Madras, etc. besides Bengal. See, no doubt first start हुआ ये सब बंगाल में कि भाई boycott the foreign goods, adopt the national education, adopt the indigenous product, I mean स्वदेशी goods। बट उनका देख के उनकी जो अफेक्ट थी वो मूवमेंट की, वो अदर एरिया मीन्स अदर प्रोविंसेस, अदर एरिया ऑफ इंडिया में हमें देखने मिला, लाइक इन पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा प्लेसेस पे ये सब देखने को मिला, इनकी इफेक्ट हुई। एंड द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज फेल्ट इन गुजरात टू। एंड गुजरात में भी उनकी एक इफेक्ट है वो देखने को मिली। And the echo of the movement was also felt strongly in the British Parliament, and within a 6 year, 1911, the division of Bengal was scrapped after the rethinking by the Parliament। और ये अफेक्ट की वजह से विद इन अ 6 year ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट ने स्ट्रांगली फील किया, और जो बंगाल का डिवीजन था, जो बंगाल का डिवाइड करना था, was scrapped after the rethinking by the parliament, and this was the memorable victory by the Indians। ये ऐसी विक्ट्री, ऐसी जीत थी इंडियंस की कि जो हम भूल नहीं सकते, इसे मेमोरेबल विक्ट्री थी हमारी। एंड द विक्ट्री ऑफ द रिलेंटलेस united efforts, this was the noteworthy victory of the new awakening against the English rule, बिकॉज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये फर्स्ट ऐसी हमारी विक्ट्री थी जिसमें हम अच्छे से जीते थे, मीन्स हमें जो करना था, उनके अगेंस्ट जाना था, वो डिफेंस कर पाए थे और हमें जीत भी मिली थी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट वॉज द नॉट वर्दी विक्ट्री। राइट, क्लियर, अंडरस्टूड, गुड। So here we done this topic, that is the boycott and indigenous movements. Total 5 paragraph in this topic. Now the last paragraph you just read this, and if you want then you can revise all the topic and then come to the next, that is the Muslim League 1906। Okay, जिनको होल रिवाइज करना है वो होल टॉपिक रिवाइज करें, अदरवाइज जस्ट लास्ट पैराग्राफ करो तो भी चलेगा। यू हैव 1 minute, just revise it and read it, and then we'll come to the next point। और ये अंडरलाइन भी करना है कि क्लॉथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप, sugar cigarette from import from England also reduce। Then also underline this provinces like Punjab, UP, Madhya Pradesh, which was felt by the movement, Bengal's movement। Okay, done। Now next, that is the Muslim League। Just a second, huh? Yes, here। So Muslim League 1906, by adopting the divide and rule policy, हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी डिवाइड एंड रूल की, द इंग्लिश वांटेड
to create a conflict between Hindus and Muslims. So due to that adoption of policy, English means Britishers क्या इच्छते थे, उनकी क्या इच्छा थी? They wanted to create a conflict between Hindu and Muslim. वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम्स खड़े हो. Create a conflict between the Hindus and the Muslim. And then the Viceroy Lord Minto and the Indian Vizier means वजीर और दीवान हम जो बोलते हैं ना, मोरले टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म. और वो दोनों मिलके एक पूरा प्लान कर रहे थे कि भाई इंडियन नेशनलिज्म को कैसे क्रश करे, मीन्स कैसे उनको ब्रेक करे. When the national fight became stronger, the Britishers or English began to favor the upper class Muslim. जब नेशनल फाइट स्टार्ट हुई और और स्ट्रॉन्ग हुई, एट दैट टाइम इंग्लिशों ने क्या किया कि जो मुस्लिम्स लीग के अपर क्लास थे, जो रिचेस थे, जो हायर क्लास थे, उनकी फेवर करना स्टार्ट कर दी. और ब्रिटिशर्स है वो सक्सेसफुल रहे. वो मुस्लिम जो ग्रुप था उनको उनकी फेवर करने में, और दे मस्ट फॉर्म अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड फॉर द सेपरेट वोटिंग राइट्स एंड द सेपरेट वोटिंग सेंटर्स. और उन्होंने ऐसा एटमोसफियर क्रिएट किया, ऐसी सिचुएशन बनाई कि वो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था ऐसा बना में कि भाई वो एक ऐसी डिमांड करते भाई उनको सेपरेट वोटिंग राइट भी चाहिए और सेपरेट सेंटर्स भी चाहिए. और उनकी वजह से इंडियन और मुस्लिम में प्रॉब्लम मीन्स कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, ऐसा उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंग्लिश का. सो when the national fight becomes stronger, the English began to favor upper class, and the English became successful in convincing a group of the Muslims that they must form a Muslim organization to demand for the separate voting rights and the separate voting centers. Understood? मैंने अभी explain किया है. As a result, Muslim League was formed 1906. और उनके रिजल्ट में एक मुस्लिम लीग वो फॉर्म हुई. कब फॉर्म हुई? 1906 पे. रिलीजियस हेड ऑफ अ मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, and Viceroy Minto and his personal minister Dunlop Smith had played an important role in the establishment of this organization. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये जो मुस्लिम लीग 1906 की बात कर रहे हैं वो. सो उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे? तो फर्स्ट तो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम आगा खान के, जो थे नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान. फिर थे वाइसरॉय मिंटो और उनका जो पर्सनल मिनिस्टर था वो तीनों ने ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप द मुस्लिम फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस. और क्या हुआ कि भाई जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी वो अटेंड करना, वो मुस्लिम लोगों ने अटेंड करना बंद कर दिया. क्यों? बिकॉज उसमें उनका भी कोई फॉल्ट नहीं था. बिकॉज ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो इंग्लिश लोगों पीपल्स थे, उन्होंने जानबूझ के मुस्लिम को ऐसे जो अपर क्लास के जो लोग थे मुस्लिम में, उनको जानबूझ के ऐसा किया था और उनकी फेवर की थी ताकि वो लोग हैं वो हिंदू से सेपरेट होने का ट्राई करें. अदरवाइज बिफोर द इंडिपेंडेंस हिंदू और मुस्लिम, अभी जो इंडिया पाकिस्तान थे, ऐसा कुछ नहीं था. वो दोनों एक ही थे और बहुत अच्छी सी उन लोगों में रिलेशनशिप थी. हम ये बोल सकते थे कि एट दैट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान मीन्स इंडियन एंड मुस्लिम हैज़ एमिकेबल रिलेशन, दैट इज़ अ फ्रेंडली, बहुत अच्छे रिलेशन थे. बट ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स, ये दोनों कौम के बीच में ये एक डिवीज़न हो गया. अदरवाइज बहुत अच्छी सी रिलेशनशिप थी उन दोनों लीग के बीच में. सो ये सब जो स्टार्ट हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ, और उनके बाद they stopped the Muslim from the attending the annual conference of the Congress. And then the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. And that after
मुस्लिम लीग ने भी सेम मीन्स कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की उनकी लीग के लिए, बट जिस दिन कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती थी सेम डे उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस अरेंज की. एंड दस डिमांड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मुस्लिम बट दैट ऑफ द इंग्लिश पॉलिसी. सी, ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, वो मुस्लिम के जो ब्रेन चाइल्ड, जो अच्छे लोग थे, जिनका ब्रेन इतना खराब था ही नहीं, ऐसी सोच ही नहीं थी, उनके अच्छे वाले माइंड की नहीं थी, ऐसे ब्रेन चाइल्ड की नहीं थी. दैट्स वाई ये द वर्ड यूज इज द ब्रेन चाइल्ड, बिकॉज एक बच्चे जैसा माइंड जो और कोई कहे और मान ऐसा माइंड, ऐसे उनका ये थिंकिंग ही नहीं था. बट ये तो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी कि भाई इंडियन और मीन्स हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की, बिकॉज वो दोनों एक थे, इसीलिए वो इतने स्ट्रांग थे. Minto started the policy of taking the Muslim as associates. That's why the many writers consider the Minto as a father of the Muslim communalism. Communalism. A historian also goes to the extent of the saying that, और जो historian है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि the real creator of the Pakistan was not a Muhammad Ali Jinnah or Rahimullah but the Minto. और जो हिस्टोरियन थे, जो लोग हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के एक्चुअल क्रिएटर मोहम्मद जीना अली और रहमुत्तर नहीं है, बट मिंटो वाइसरॉय है, कि जो चाहते थे कि एक्चुअल में पाकिस्तान है वो अलग हो. सिंस देन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इंक्रीज्ड एंड द रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ इंडिया. और ये पॉलिसी की वजह से हिंदू मुस्लिम में जो कन्फ्लिक्ट थे वो इंक्रीज होते ही गए. डे बाय डे it had been increased, and that's why at the result of that the division of India started, right? So here we done the Muslim League 1906. I hope now you clear about कि भाई इंडिया और पाकिस्तान अलग कैसे हुए ड्यू टू द ब्रिटिशर्स पॉलिसी. अदरवाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, बट ये इंग्लिश और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से दोनों के माइंड में एक कन्फ्लिक्ट जैसा क्रिएट हुआ, और फिर कन्फ्लिक्ट एक्चुअली हुआ दोनों के बीच में, और दोनों कौम थी वो अलग हो गई, डिवाइड हो गई. ओके, अंडरस्टूड? जस्ट रीड दिस पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, एंड एनी डाउट्स देन नोट डाउन, और फिर बाद में मुझे पूछ लेना. और हाँ, मोस्टली 1 Feb से हमारी स्कूल भी स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ बुक्स वगैरह जो भी हैं वो रेडी करके रखना, बिकॉज स्कूल स्टार्ट होते ही मोस्टली आपकी बुक चेकिंग करेंगे या तो होमवर्क चेक करेंगे. सो बेटर है कि अभी से स्टार्ट कर लो तो बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, गुड. चलो, आई होप कि आप अच्छे से कर ही लोगे. और अभी ये जस्ट पैराग्राफ रीड करो और कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, डन. चलो, come to the next topic. Birth and development of the extreme revolutionary movement. Extreme revolutionary movement means चेंज लाना था, एक क्रांति करनी थी. उनका बर्थ एंड डेवलपमेंट. So the first paragraph, the revolutionary activity in India was started by the Vasudev Balwant Phadke. किसने स्टार्ट की एक्टिविटी? सी, यहाँ पे एक पिक्चर दिया है वो पर्सन का, वासुदेव बलवंत फड़के. उन्होंने स्टार्ट की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया. रिवॉल्यूशनरीज लाइक द दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, then Barindanath Ghosh, then Khudiram Bose,
Praful Chakki, Rampradas Bismil, then Asafullah Khan, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Shivram Rajguru, Sukhdev, Batukeshwar Dutt, then Roshan Singh, etc. carried on the torch of the nationalism, and the youth trained in making and using the weapons were a constant threat for the English government. ये सब रिवॉल्यूशनरीज है जिन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर टॉर्च रखी थी, और ये जो पूरा यूथ था वो ऐसे ट्रेन हुआ था कि भाई वेपन्स यूज़ करके मीन्स कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली वो यूज करना है और यूथ को ट्रेन करना है इंग्लिश गवर्नमेंट की अगेंस्ट में। सी यहाँ पे ये सबके पिक्चर दिए हैं, फोटोज दिए, यू कैन सी खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, देन सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, रोशन सिंह, बाल गंगाधर तिलक एंड वासुदेव बलवंत फड़के। सी यहाँ पे वो सब रिवॉल्यूशनरीज के फोटोज दिए। देन fears the revolutionary movements began in India and spread in other countries as well. इंडिया में ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उनके साथ ही ये अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया। एंड द सर्कमस्टेंस इन इट्स बैकग्राउंड वर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द पार्टीशन ऑफ द टू ग्रुप दैट इज द चहाल एंड मवाल। और कैसी एक सिचुएशन आ गई कि भाई जो बंगाल का पार्टीशन था, जो दो ग्रुप में पार्ट होने वाला था चहाल एंड मवाल, वो कैंसिल हो गया। एंड एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत द terrific opposition to the practice of the Congress of making only resolution and request, लाल बाल पाल ट्रियो, ये त्रिपुटी है लाल बाल पाल की, वो adopted the radical attitude which brought the new life in the young Indian activist। जो इंडियन एक्टिविस्ट थे, जो यंगस्टर्स थे, उनको उनकी लाइफ में एक न्यू चेंजेस लाना चाहते थे, एक न्यू एटीट्यूड, रेडिकल एटीट्यूड लाना चाहते थे ये लाल बाल और पाल। So the lethargic policy of the Indian National Congress got a solid new turn। ये जो lethargic policy उन्होंने अडॉप्ट की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो एक अच्छा सॉलिड न्यू टर्न ले आए। Then Lokmanya Bal Gangadhar Tilak declared it the firmly freedom is my birthright and I will achieve it anyhow। This became the maxim for the revolutionary freedom fighters। और बाल गंगाधर तिलक ने कैसा डिक्लेयर किया कि भाई फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, स्वतंत्रता है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हम बोलते हैं ना, और वो उसको लेके ही रहेंगे एट एनी कॉस्ट। ये उन्होंने डिक्लेयर किया और डे बाय टाइम रहते ये जो स्लोगन था वो सबके लिए बन चुका फॉर ऑल द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। तो इस ये पैराग्राफ में से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या डिक्लेयर किया था, तो फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, राइट। सो we just done the 3 paragraph of this topic। I hope you all understood this clear। So just read this 3 paragraph and then come to the next। So first read this 2 paragraph within 1 minute। एंड प्लीज अंडरलाइन करना, ये सब नाम आपको एटलीस्ट 4 to 5 नेम्स तो लिखने ही है। Then in second paragraph important is the cancellation of the partition of Bengal, that is Chahal and Mawal। Then underline the Lal Bal Pal and also underline the revolutionary activity started by Vasudev Badwant Phadke। Okay, then read this third paragraph। Okay, done? Good। So here we done this
और नेक्स्ट पैराग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. आज का इतना इनफ है बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. So that is the start from the next lecture. Here we done today's lecture. So in today's lecture, we will complete the last paragraph of boycott and indigenous movement topic का. Then Muslim League हमने done की, means complete की. और बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के फर्स्ट 3 पैराग्राफ हमने कंप्लीट किए. मीन्स 1.5 पेज जितना किया. राइट. So I hope now you all clear about these topics and understood perfectly. Still you have any doubt, then you can ask me easily. और अभी आप डाउट इकट्ठा करके भी रख सकते हो और एक साथ मुझे स्कूल में भी पूछ सकते हो और ऑनलाइन में भी पूछ सकते हो कि यूट्यूब में आप कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछ लो. और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप वो भी मुझे उसमें भी व्हाट्सएप थ्रू भी पूछ सकते हो. So here we done today's lecture. So first note down the homework. Write a short note on boycott and indigenous movement. Write a short note on boycott and indigenous movement. See, इसमें एक्सरसाइज में दिया होगा. Yes. First question, discuss the nature and effect of the boycott, agitation and national movements. तो उसमें आपको ये पूरा टॉपिक है वो कवर करना है. ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नहीं, वो नेक्स्ट वो पैराग्राफ हम ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला वो ही हम आज का टॉपिक जो हमारा हाफ पेंडिंग है वो कंप्लीट करके करेंगे. तो आज को होमवर्क में 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट, द डिस्कस द नेचर एंड इफेक्ट द बॉयकॉट, एजिटेशन एंड नेशनल मूवमेंट्स. एंड सेकंड वन है yes, write a short note on Muslim League. ये जो पैराग्राफ है ना उसमें से आपको टोटल 6 पॉइंट लिखने हैं. आपको जो प्रॉपर लगे, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कोई भी 6 पॉइंट इसमें से लिखने हैं मुस्लिम लीग. ओके. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस इन होमवर्क. Okay, so here we done today's lecture. I hope you all enjoyed. Goodbye everyone, and we'll meet in next lecture. Okay, goodbye everyone.